So students, in today's lecture we are going to do synopsis of differentiation, alright, and then we will be starting the MCQs of differentiation, alright. First we do the synopsis. Now from standard function, formula of standard function to convert formulas of composite function, we have to make two changes. Replace x by u on both sides, दोनों साइड पे जहां x है वहां u लिखने का, and multiply by du by dx in the right hand side. For example, we know derivative of sin x is cos x, but derivative of sin u will not be cos u du by dx. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse u will be 1 upon 1 plus u square into du by dx. Derivative of log x is 1 by x, but derivative of log u will be 1 by u du by dx. Derivative of e raised to x is e raised to x. So derivative of e raised to u will be e raised to u into du by dx. From formula of standard function to convert formula of composite function, we have to make two changes. जहां x है वहां u, दोनों साइड पे x है तो x, u है तो u, and multiply by du by dx. Now MCQ solving, alright, we need speed, alright, and we need accuracy. So there are some problems which are important but cannot be done in 2 minutes. For such problems, we remember the question and we remember the answer. So these are standard results which we have to learn by heart. These are standard results, alright. Y is equal to log x to the base a. क्या होगा dy by dx? 1 upon x log a. Log x to the base a का डेरिवेटिव आएगा 1 upon x log a. For example, derivative of log x to the base 5 will be 1 upon x log 5. We can apply change of base theorem. Log x to the base a is, by change of base theorem, log x upon log a. Log a constant है, that can be taken outside. Log a constant we can take outside, and log x का 1 upon x हो जाएगा. 1 upon log x, derivative of 1 upon log x. This 1 upon log x is like 1 upon u, composite function. 1 upon u का डेरिवेटिव आएगा minus 1 upon u square into du by dx. तो आएगा minus 1 upon u square, u का वैल्यू log x है, so log x the whole square into derivative of log x which is 1 by x. All these standard results are important. ये formulas जो है, alright, they will help you to do the problem quickly. Next, derivative of x raised to x. X raised to x is variable raised to variable. In 12th standard, we don't have a direct formula for variable raised to variable, but for MCQs we have direct formula. X raised to x, 1 plus log x. Y equal to tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x. Then dy by dx is 1 upon 2 times 1 plus x square. ये प्रॉब्लम इनफैक्ट अगर देखोगे तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हमने यहाँ पे लिखा है, ऑलराइट, दे आर ऑल देयर इन अवर इंपॉर्टेंट सम का बुक. डेरिवेटिव का जो इंपॉर्टेंट सम का बुक है उसमें देखोगे तो ये सब सम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ऑलराइट. लेकिन ये सम्स दो मिनट में करना पॉसिबल नहीं है. सो वी रिमेंबर द क्वेश्चन, वी रिमेंबर द आंसर. Tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x. dy by dx is 1 upon 2 times 1 plus x square. Y equal to x raised to x raised to x. You know ये 1.5 पेज का solution है इसका. Alright. So the formula is x raised to x raised to x, x raised to x into log x brackets 1 plus log x plus 1 upon x log x. U raised to v. U raised to v is like variable raised to variable. Now the formula is, this is only for MCQs, please note.
This is not there for 12th. We cannot use this formula for 12th. None of these formulas are valid for 12th. Alright? U raised to V. Alright? U raised to V is variable raised to variable. The formula is U raised to V times V upon U into du by dx and log U times dV by dx. For example, sin x the whole raised to x. This is like U raised to V, where U is sin x and V is cos x. V is x, alright? U is sin x and V is x. तो क्या आएगा? U raised to V, then V upon U, V upon U, so x upon sin x, derivative of U, sin x का derivative cos x, and log U times, so log of sin x, and derivative of V, x का derivative होगा 1. आंसर आएगा sin x the whole raised to x, brackets x cot x plus log of sin x. Next, x raised to y equal to e raised to x minus y. फॉर्मूला है log x upon 1 plus log x the whole square. दोनों साइड का log लेके हम आंसर ला सकते हैं ये वाला. x raised to y equal to a raised to x minus y. dy by dx आएगा x log a minus y upon x log ax. अगर a के बदले 3 आया तो आंसर में भी a के बदले 3 लिखने का. तो आंसर आएगा x log 3 minus y upon x log 3x. a raised to x plus a raised to y is a raised to x plus y. dy by dx आएगा minus a raised to y minus x. a के बदले 3 आया या 5 आया, 5 raised to x plus 5 raised to y is 5 raised to x plus y. तो जहां 3 है वहां 5 आ जाएगा. 3 raised to x plus 3 raised to y, 3 raised to x plus y. तो आंसर आएगा minus of 3 raised to y minus x. ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो आपको लर्न बाय हार्ट करना है. ये रिजल्ट्स आपको लर्न बाय हार्ट करना है. ऑलराइट, अभी खत्म नहीं हुआ है. यू टू स्टिल राइट द सिनॉप्सिस. y1 is dy by dx. अब ये dy by dx को हम लिखेंगे y1 और d2y by dx स्क्वायर को लिखेंगे y2. ऑलराइट, नंबर 10. ये तीनों के लिए एक ही कॉमन आंसर है. ये तीनों के लिए एक ही कॉमन आंसर है. y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x और y इक्वल टू a cos log x और y इक्वल टू a sin log x. द आंसर इज x square y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0. 11th, y इक्वल टू log of log x और log of log 2x. ये दोनों के लिए
मैंने बोला वैसे ये सब सम्स हमने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन में ये सब सम्स हमने किया हुआ है, ऑलराइट। ये लेकिन all these sums cannot be done in 2 minutes, so we remember the question and the answer. 12th. If x raised to p into y raised to q is x plus y raised to p plus q, इधर पावर p है इधर पावर q है, तो इसका पावर है p plus q, मतलब यहाँ पावर 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 plus 4 7 आएगा, यहाँ 4 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 4 plus 6 10 आएगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 13 आएगा। ये टाइप के प्रॉब्लम के लिए y1 आएगा y by x। अब याद रखेंगे जब भी y1 फर्स्ट डेरिवेटिव y1 जब भी y by x आएगा y2 विल बी 0। If ax square plus 2hxy plus by square equal to k, ये जो है ये हमारा जो पेयर ऑफ लाइंस है उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, उसका लेफ्ट हैंड साइड है ax square plus 2hxy plus by square इक्वल टू 0 आएगा, ऑलराइट। अगर हमारा पेयर ऑफ लाइंस का सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो इक्वल टू 0 आएगा, ऑलराइट। और अगर इसमें इक्वल टू k दिया होगा तो y1 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, और y2 आएगा k टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स माइनस एच एक्स प्लस बी वाई द होल क्यूब। फॉर एग्जाम्पल इसमें y1 का दो आंसर है, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई और y बाय एक्स, और जब भी y1 y बाय एक्स आएगा तो y2 0 आएगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यहाँ पे k है, वेरएज यहाँ पे k के जगह पे 0 है, तो ये फॉर्मूला में अगर k के बदले 0 डाल दिया तो पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, दैट इज व्हाई द आंसर विल बिकम 0, ऑलराइट। नाउ अगेन दिस सम we have done in 12th. Next, number 14. Number 14. We know this formula. Parametric formula. We know parametric formula, dy by dx is dy by dt upon dx by dt, and we also have to remember formula for d2y by dx square. We'll have to apply q upon v rule, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा,
this they have asked as a MCQ. d2y by dx square का फॉर्मूला क्या आएगा? डिनोमिनेटर में dx by dt द होल क्यूब, न्यूमरेटर में dx by dt के साथ dy by dt का डेरिवेटिव d2y by dt स्क्वायर माइनस dy by dt के साथ dx by dt का डेरिवेटिव, लेकिन डिनोमिनेटर में dx by dt द होल स्क्वायर नहीं आएगा, होल क्यूब आएगा. नंबर 15. If y equal to fx is a differentiable function of x such that its inverse x is equal to f inverse y is defined, then dx by dy is 1 upon dy by dx, provided and dx by dy is 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. और d2x by dy square जो है, remember this, d2x by dy square जो है, that is not equal to 1 upon d2y by dx square. डबल डेरिवेटिव में रेसिप्रोकल का फॉर्मूला नहीं है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव में है. dx by dy फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में dx by dy is 1 upon dy by dx, but if you want d2x by dy square, the formula is negative d2y by dx square upon dy by dx the whole cube. Remember this, ये applicable नहीं है, this is not there. Now we are doing standard results from inverse trigonometry. Sin inverse root 1 minus theta square is cos inverse theta. Cos inverse root 1 minus theta square is sin inverse theta. Sin inverse root 1 minus theta square becomes cos inverse theta. इधर x के बदले cos theta सब्स्टिट्यूट करो. Let y be sin inverse root 1 minus theta square. Substitution करेंगे, theta equal to cos x, let us say
theta equal to cos x. So cos inverse theta will become x. So what will y become? Sine inverse of root 1 minus what is theta? Cos x. So 1 minus cos square x. That is sine inverse of sine square x. Sine inverse of sine x. Sine square x ka root. Sine inverse of sine x will become x. But what is x? Cos inverse theta. So this is 1. This is 2. ये दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. सो व्हाट इज साइन इनवर्स रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर cos inverse theta? Similarly, cos inverse root 1 minus theta square will become sin inverse theta. Second, tan inverse theta upon root 1 minus theta square becomes sin inverse theta. Next, third, tan inverse of root a minus x upon a plus x will become half cos inverse x by a. Again, we can easily prove this. x को a cos theta डाल दो. So what will be x upon a cos theta? So what will be cos inverse of x by a? Theta. So what will y become? Tan inverse a minus a cos theta upon we apply half angle formula. Will become tan inverse of tan theta by 2 will become theta by 2, where what is theta? Value of theta is cos inverse x by a. So half, again if I name this as equation 1 and if I name this as equation 2, 1 and 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा. सो tan inverse root a minus x upon a plus x will become half cos inverse x by a. x के बदले अगर थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा. अगर फॉर्मूला में x के बदले थीटा होगा, सपोज यहाँ पे थीटा है तो आंसर में थीटा आ जाएगा. x होगा तो x आएगा, थीटा होगा तो थीटा आएगा. नंबर 4, अभी हमने इसका एग्जांपल देखा. अपना जो प्रीवियस सिनॉप्सिस था उसमें रिजल्ट नंबर 4, एक्चुअली इसका सिंप्लीफिकेशन है हाफ tan इनवर्स x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ विल रिमेन एज इट इज एंड tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x square. Therefore the answer will become 1 upon 2 times 1 plus x square. अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन है ये. नेक्स्ट, नंबर 5. ये सबका सिंप्लीफाइड वैल्यू 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, यानी कि 2 tan इनवर्स थीटा साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन
1 plus theta square, sin inverse 2 theta upon 1 plus theta square equal to cos inverse 1 minus theta square upon 1 plus theta square equal to tan inverse 2 theta upon 1 minus theta square. ये सबका आंसर आएगा 2 tan inverse theta. नेक्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ 3 थीटा माइनस 4 थीटा क्यूब, क्या आंसर आएगा? 3 साइन इनवर्स थीटा. ये हमारा अगर थीटा के बदले साइन अल्फा डाल दिया, अगर यहाँ पे थीटा के बदले साइन अल्फा डाल दिया तो ये बन जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, तो साइन 3 अल्फा बन जाएगा. तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अल्फा, अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स हो जाएगा. सो साइन इनवर्स ऑफ 3 थीटा माइनस 4 थीटा क्यूब, क्या आंसर आएगा? 3 साइन इनवर्स थीटा. कॉस इनवर्स ऑफ 4 थीटा क्यूब माइनस 3 थीटा, क्या आंसर आएगा? 3 cos inverse theta. and tan inverse 3 theta minus theta cube upon 1 minus 3 theta square, क्या आंसर आएगा? 3 tan inverse theta. साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर, आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स थीटा और 2 कॉस इनवर्स थीटा. इसमें अगर y को ये लिया और थीटा को साइन अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो साइन इनवर्स थीटा विल बिकम अल्फा. सो व्हाट विल y बिकम? साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन अल्फा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. ये रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी कॉस अल्फा. व्हाट इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा? साइन 2 अल्फा. साइन 2 अल्फा इट विल बिकम. Sin inverse of sin 2 alpha will be 2 alpha. And what is alpha? Sin inverse theta. So ये टर्म का सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा. अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो एग्जाम में आपको ये स्टेप्स नहीं करना पड़ेगा, तो ये स्टेप करने का जो आपका टाइम है वो बच जाएगा. दैट इज व्हाई यू शुड नो दिस फॉर्मूला. अगर यहाँ पे साइन अल्फा के जगह पे कॉस अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आएगा 2 cos इनवर्स थीटा. तो इसका दो आंसर्स है, 2 साइन इनवर्स थीटा और 2 cos इनवर्स थीटा. सिमिलरली अगर थीटा के बदले साइन अल्फा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y विल बिकम this is formula for sin 3 alpha will become 3 alpha will become 3 sin inverse theta. तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा. सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ 3 थीटा माइनस 4 थीटा क्यूब होगा. साइन इनवर्स में 34 आएगा, कॉस इनवर्स में 43 आएगा. आंसर 3 साइन इनवर्स आएगा, इसमें 3 कॉस इनवर्स आएगा. tan इनवर्स ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर, आंसर आएगा 3 tan इनवर्स थीटा. एंड साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा अपॉन
2 थीटा √1 माइनस थीटा स्क्वायर, आंसर आएगा 10th। बाहर साइन इनवर्स होगा, अंदर पहले साइन थीटा बाद में कॉस थीटा, एक में कोएफिशिएंट है दूसरे में बी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो आंसर इसका आएगा डायरेक्टली थीटा प्लस और माइनस अल्फा। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, अल्फा इज अ कांस्टेंट। और कॉस इनवर्स होगा तो अंदर पहले कॉस थीटा और बाद में साइन थीटा आएगा, एंड अंडर रूट अगेन, इसमें उल्टा आएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। सो बाहर साइन इनवर्स होगा तो अंदर पहले साइन थीटा बाद में कॉस थीटा। अब थीटा के बदले एक्स होगा तो एक्स प्लस अल्फा आएगा, 2x होगा तो 2x प्लस अल्फा आएगा, x/2 होगा तो x/2 प्लस और माइनस होगा, इधर 2x होगा तो 2x माइनस अल्फा आएगा, x/3 होगा तो x/3 आएगा। इधर जो भी एंगल है वही पहला टर्म होगा, जो भी एंगल है कॉस या साइन के अंदर वही पहला टर्म होगा और बाद में कांस्टेंट आ जाएगा। सो दिस इज द सिनॉप्सिस दैट वी नीड टू स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। ऑलराइट, सो वी नाउ स्टार्ट विद द एमसीक्यूज, एंड फॉर एमसीक्यूज we remember now we will not be writing dy by dx, we'll write, instead of dy by dx we write y1, and instead of d2y by dx square we write y2. ये 11 फॉर्मूला जो इनवर्स का हमने लिखा, ऑलराइट, और वो आगे जो 15 फॉर्मूला लिखा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट, वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको इंपॉर्टेंट सम के बुक में 5 टाइम्स लिखना है। ऑलराइट, ये 11 और 15 टोटल 26 फॉर्मूलास, ऑलराइट, दैट वी हैव टू राइट डाउन 5 टाइम्स इन द इंपॉर्टेंट सम बुक। नाउ वी स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। This is like composite function u raised to 5. u raised to 5 का आएगा 5u raised to 4 du by dx, तो आंसर आएगा 5 टाइम्स। आंसर आएगा 5 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन बी। सेकेंड, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। वी वॉन्ट the value of root of क्या होगा y1, ये रूट ऑफ u है तो आएगा 1/2 रूट u इंटू du by dx। तो ये x स्क्वायर का आएगा 2x, 4x का 4 इंटू 1 माइनस 0, ये पूरा डेरिवेटिव इधर ऊपर आ जाएगा अपॉन 2 रूट, तो ये रूट वाला टर्म इधर ले लेंगे,
इधर से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में x प्लस 2 एंड 2 गेट्स कैंसल्ड, तो आंसर आएगा x प्लस 2, ऑप्शन आएगा A. These are absolutely simple questions. Third, just based on your 3/5 into cube root of 2x square minus 7x minus 5 whole raised to 5. This is ये 3/5 को साइड पे ले लेंगे, ये रेस टू 5 है और क्यूब रूट मतलब रेस टू 1/3, तो रेस टू 5/3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/5. ये प्लस 5/3 को ऊपर लेंगे तो माइनस 5/3, तो क्या होगा y1, ये 3/5 एज इट इज, टोपी नीचे कीमत कम, सो माइनस 5/3 minus 5/3 minus 1 will be minus 8/3 and ये रेस टू 5 है और ये क्यूब रूट है मतलब रेस टू 1/3, तो 5 और 1/3 मल्टीप्लाई होके 5/3, वो ऊपर जाएगा तो माइनस 5/3, तो अब ये जो है this is u raised to 5, this is root u, this is u raised to minus 5/3, तो आएगा minus 5/3, टोपी नीचे कीमत कम, ऑलराइट, तो अब ये 5 and 5 कैंसिल, 3 and 3 कैंसिल, माइनस ऑफ एंड, तो ये माइनस इधर ले लेंगे तो अंदर आएगा 7 minus 4x, ये इंटरचेंज हो जाएगा अपॉन दिस इज द आंसर 7 minus 4x अपॉन, या तो माइनस ऑफ 4x minus 7 लिखा तो भी चलेगा, ऑलराइट, यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन सी, आंसर आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, फोर्थ, दिस इज cos u, डेरिवेटिव होगा माइनस साइन u du बाई dx, सो माइनस साइन ये एज इट इज 2x प्लस 0, आंसर आएगा माइनस 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आंसर आएगा ऑप्शन डी. y इज इक्वल टू log tan x बाई 2. अब ये log tan x बाई 2 देख के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद आना चाहिए. कोसेक x का दो फॉर्मूला है, ये कोसेक x के इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला है, तो इधर जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन है, तो इधर जो क्वेश्चन है वो आंसर बन जाएगा. सो y1 विल बी डायरेक्टली कोसेक x. दिस इज बाय यूजिंग ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला, आंसर आएगा ऑप्शन ए. डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हैं ये, लेकिन डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्टली आंसर हम लिख सकते हैं यूजिंग ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला. वी नो द फॉर्मूला कोसेक एक्स का log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और log tan x by 2. इधर जो आंसर है वो इधर क्वेश्चन है, तो इधर जो क्वेश्चन है वो इधर आंसर हो जाएगा डेरिवेटिव. सिक्स्थ, root of tan root x. We want this is now root of u. This is now root of u. तो डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट u into derivative of u, that is क्या होगा 1/2 रूट tan root x. tan root x का डेरिवेटिव sec square root x, डेरिवेटिव ऑफ root x. दिस इज sec square root x upon 2 root tan root x into 1/2 root x. ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके इधर ले लेंगे. आंसर आएगा sec square root x, 4 root x. आंसर आएगा ऑप्शन सी. आंसर आएगा ऑप्शन सी. सेवेंथ, y is equal to cot cube log x cube. This is like u cube. This is actually that is like u cube. ये cot cube को cot the whole cube लिख सकते हैं. This is u cube. u cube का डेरिवेटिव 3u square into du by dx. So 3 times cot log x cube the whole square into derivative of cot log x cube. This will become 3 cot square log x cube. अब ये बन जाएगा cot u. cot u का आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर log x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्यूब. अब ये log x क्यूब जो है दैट इज ये पावर 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 log x. ये log x क्यूब में से पावर 3 नीचे आ जाएगा और वो 3 log x का डेरिवेटिव आएगा 3/x, तो आएगा -9. द वैल्यू ऑफ k विल बी, यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है आंसर में, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है आंसर में और आगे दिया है k, इसमें वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये वैल्यू आएगा k का वैल्यू आएगा -9. वैल्यू ऑफ k आएगा -9. ऑप्शन आएगा डी.
ऑप्शन आएगा डी। ये याद रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आएगा साइन 2 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस साइन 2 थीटा। दिस इज लाइक यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का आएगा 2u, डेरिवेटिव ऑफ u तो आएगा 2 साइन थीटा d by d theta of sin theta, that is 2 sin theta into cos theta, that becomes sin 2 theta. So derivative of sin square theta आएगा sin 2 theta. Similarly derivative of cos square theta आएगा minus sin 2 theta. ये u square है, derivative 2u du by d theta आएगा. Alright? Next question number 8. y is equal to e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x. We want y1. This will be three will remain as it is, sin 2x minus 2 will remain as it is, minus sin 2x. तो ये 3 plus 2 5 sin 2x हो जाएगा. क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे ना तो इधर fx दिया हुआ है, तो fx का वैल्यू आएगा 5 sin 2x. क्वेश्चन में वहां पे dy by dx इक्वल टू fx इंटू दिया हुआ है, तो fx आएगा 5 sin 2x. ऑप्शन आएगा A. ऑप्शन आएगा A. Next, 9th. E raised to log now we know this formula. E raised to log p इक्वल टू p, ये हमने डेरिवेटिव में भी लिखा है और इंटीग्रेशन में भी लिखा है, तो ये e और log कैंसल हो जाएगा, सो y विल बिकम log x द होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर. दिस विल बी log x द होल स्क्वायर माइनस 2 log x. इधर ये 2 पावर नीचे आ जाएगा, इसमें 2 पावर नीचे आएगा, इसमें नीचे नहीं आएगा. इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या होगा y1, ये u स्क्वायर हो जाएगा. log x द होल स्क्वायर इज लाइक u स्क्वायर, तो आएगा 2 log x डेरिवेटिव ऑफ log x and 2 will remain as it is and 1 upon x. 2 log x 1 by x minus 2 upon x. आंसर आएगा
2 log x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x, यानी कि ऑप्शन आएगा बी। आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी। ये 9th सम को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जो सम हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, जो एमसीक्यू, वो एक बार लिखना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें चेंज ऑफ बेस थ्योरम यूज करेंगे। लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई स्क्वायर। बेस ही होना चाहिए लॉग का, यहां पे बेस ई स्क्वायर दिया हुआ है। दिस इज बाय चेंज ऑफ बेस थ्योरम। तो ये बनेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स एंड 2 log ई। ये log ई का वैल्यू 1 है, तो ये y बन जाएगा। तो क्या होगा y1, ये 1/2 बाहर रह जाएगा, ये 2 साइड पे आ जाएगा। एंड log log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट इज आंसर आएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स x log x। y1 आएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स x log x। ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन आएगा सी। 11th, this is like u upon v. In fact, this is question number 12. पहले 11th करेंगे। 11th is sin square x square this is like ये sin square theta माइनस cos square theta माइनस कॉमन ले लिया, तो ये नाउ दिस इज लाइक cos square theta माइनस sin square theta, तो cos 2 theta हो जाएगा। वी आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। cos square theta माइनस sin square theta इज cos 2 theta, तो ये y बन जाएगा। क्या होगा y1, ये cos u है, तो माइनस ऑफ साइन 2x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, दिस विल बी, ये 2x स्क्वायर का 4x हो जाएगा। सो साइन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 4x, आंसर आएगा 4x साइन 2x स्क्वायर, 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर। ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये 11th को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, 9th एंड 11th। 12th, y is x upon, this is u upon v, this is u upon v। तो u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में आएगा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में आएगा रूट 7 माइनस 3x डेरिवेटिव ऑफ x, x रूट, दिस विल बिकम x का डेरिवेटिव 1 एंड x एज इट इज 1 अपॉन 2 रूट
7 minus 3x into derivative of 7 minus 3x, which is minus 3, divided by 7 minus 3x. अभी ये this will become this will be 2 times this will become 14 minus 6x. 14 minus 6x. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा 14 minus 6x plus 3x upon 2 times root. This will become 14 minus 3x upon 2 times this is y1. हमको क्या चाहिए? 2 times आंसर आएगा 14 minus 3x. यहां पे हमने ये लॉजिक यूज किया है, a into root a will become a raised to 3/2. इधर a का पावर 1 है, इधर a का पावर हाफ है, इधर पावर 1 है, इधर पावर हाफ है, दोनों में बेस सेम है तो पावर कंबाइन हो जाएगा. तो आंसर आएगा 14 minus 3x. ऑप्शन आएगा a. 12th में ऑप्शन आएगा a. ये 12th को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. 13th root of cos root x plus root of cos x plus root of cos root x. ये दोनों रूट यू टाइप का है. ये दोनों रूट यू टाइप का है. रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू डी यू बाई डी एक्स. ये और ये दोनों रूट यू टाइप का है. रूट यू का डेरिवेटिव 1/2 रूट यू डी यू बाई डी एक्स. ये कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आएगा और इधर भी आंसर आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स एंड साइन रूट एक्स अपॉन ऑप्शन सी इज द आंसर. ऑप्शन सी. 15th इनफैक्ट पहले 14th करेंगे देन वी कम टू 15th. 14th again we use opposite of integration formula.
सेक थीटा का इंटीग्रेशन है log सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो log सेक थीटा प्लस tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक थीटा। ये यहाँ पे x होगा तो x आएगा इन डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, यहाँ पे sec 3x है तो आएगा log sec 3x प्लस tan 3x का sec 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, थीटा के बदले 3x है तो 3x आएगा, लेकिन यहाँ पे x होगा तो कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 sec 3x। अगर एक्चुअल डेरिवेटिव से लोगे ना तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन लेंथी होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। 15th U upon V rule। This will become जब भी रेडियंस में आएगा ना तो उसको डिग्रीज में आएगा, उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आएगा ये डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट किया, ये x डिग्रीज जो है उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हो जाएगा। ये पाई बाय 180 एज इट इज इनटू 1, दैट इज हाउ आई हैव रिटन दिस आंसर। तो साइन x डिग्रीज का आएगा cos x डिग्रीज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x डिग्रीज, ये x डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट किया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो इधर आएगा, दिस विल बिकम पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा, दिस विल बी ये पाई बाय 180 cos x डिग्री से x का 1 का 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, cos डिग्रीज इंटू पाई बाय 180, ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, इधर से ये 1 माइनस साइन x डिग्रीज बचेगा,
और ये टर्म ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस साइन एक्स डिग्रीज आ जाएगा अपॉन, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, तो आगे पाई बाई 90 आएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 और 180 कैंसिल होके पाई बाई 90, ये कॉमन निकलेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब यहां पे k का वैल्यू आएगा पाई बाई 90, वैल्यू ऑफ k आएगा पाई बाई 90, यहाँ पे k दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेरिवेटिव में वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्टली, आंसर आएगा पाई बाई 90, k का वैल्यू आएगा पाई बाई 90, ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन आएगा ए, 15th में ऑप्शन आएगा ए, 14th में ऑप्शन आएगा बी। मैंने बोला वैसे इसको अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव से करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इजी हो जाएगा। ऑलराइट, सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा का सेक थीटा आएगा, लेकिन थीटा होगा तो थीटा आएगा, यहाँ पे 3x है तो 3x आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो 3 सेक 3x आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे। ऑलराइट।